مہمان ہیں حسن نثار. انگریزوں کے دلال. Extremely disappointed with Pakistan. جی آپ نے بالکل صحیح سنا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں گاہے بگاہے ایسے نام نہاد تجزیہ نگار اور سماجی کارکن کے نام سے تجزیہ نگار پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہیں کچھ میڈیا ہاؤسز کچھ NGOs کی مدد سے نامور اور مشہور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں انہیں لانچ کیا جاتا ہے. میڈیا ہاؤسز کو ان سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو TRP ملتی ہے. اسی وجہ سے وہ ایسے نام نہاد تجزیہ نگاروں کو بلاتے ہیں جو بدتمیز ہوں، اونچا بولنے والے ہوں، اور اگر وہ پاکستان اور اسلامی اقدار پر کنٹروورشل تجزیہ دینے والے ہوں تو یہ میڈیا ہاؤسز کے لیے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. انہی چند نام نہاد تجزیہ نگاروں میں سے ایک ہیں حسن نثار. حسن نثار صاحب کی ایجوکیشن اور ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے مغرب کے چند آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف مایوسی پھیلانے کا کام کرتے تھے. میں نے اس لیے کہا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہا جاتا ہے کہ حسن نثار صاحب امریکن سٹیزن شپ کے لیے کوشش کر رہے تھے. یار اس نے ہمیں اگے لگایا ہوا ہے. جب بھی وہ بیٹھ کے چار بندوں میں گفتگو کرتا ہے شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ 17 سال وہ امریکہ رہ کے آیا، جب بھی بیٹھتا ہے ہو جاتا ہے شروع انگریزوں کی تعریفیں کرنا اور کہتا ہے جی انگریز ہی ہے جس نے آپ کی زندگی آسان بڑھا دی ہے. ایجادات دیکھیں ساری انگریزوں کی ہوئی ہے. یہ مسلمانوں نے کیا کیا سوائے لڑائی جھگڑے کے انگریزی کے جنگ و جدل کے ان کے تاریخ میں کچھ بھی نہیں پڑا. حسن نثار صاحب نے جب پوری کوشش کی لیکن ان کو کوئی بینیفٹ نہ ملا، انہوں نے یہ اپنا طریقہ چھوڑ کر امریکن سٹیزن لڑکی سے شادی کر لی. ان لاز ہیں امریکہ میں for the last 25-6-7 years. اچھا ایک تو میری اہلیہ ہے کہ جو بہنیں اور بھائی ہیں سارے وہ بڑے لیوش شہزادیاں ٹائپ. ٹھیک اس کے لیے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی. حسن نثار اپنی بدتمیزی، گالیوں اور کنٹروورشل تجزیوں کی بنا پر جیو نیوز کی مہربانیوں سے مشہور کیے گئے. ویسے تو اس طرح کے تجزیہ نگار اور سماجی کارکن ہمیشہ جیو اور ڈو نیوز کے پلیٹ فارم سے ہی لانچ کیے جاتے ہیں. حسن نثار صاحب نہ صرف پاکستان اور پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلاتے رہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بھی غلط انفارمیشن پھیلاتے رہے. تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ Who are you؟ حسن نثار صاحب جیو نیوز جیسے بڑے چینلز پر بیٹھ کر پاکستان اور مسلمانوں کو مغربی لوگوں سے تہذیب سیکھنے کا درس دیتے رہے. ان کے مہذب ہونے کی نشانی ہے کہ وہ آپ کو آرگیومنٹ دے رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جنہوں نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، تعمیر کی ہے، وہی اس کو کمانڈ اور کنٹرول کریں گے جن کی یہ کریشن ہے. حسن نثار صاحب نہ صرف بدتمیز اور متنازع بیانات دینے والے ہیں بلکہ ان کی اپنی تہذیب اور اخلاقیات کا جو عالم ہے وہ آپ کو ان ویڈیو سے اندازہ ہو جائے گا. تو ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں حسن نثار صاحب کی اخلاقیات سے. حسن نثار صاحب نے سب سے پہلے اپنے والد سے بدتمیزی کر کے گھر چھوڑا اور اس کا اعتراف انہوں نے خود اس ویڈیو میں کیا. پڑھے لکھے حسن نثار کو کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ ریڈی لگا کر بیٹھ گئے؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ جب گھر بار وہ کسی مسئلے پہ میرے فادر نے، اللہ انہیں دل کی رحمت کرے، انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ یہ اسے سمجھاؤ کہ اگر یہ اپنے پرنسپلز کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اپنی دنیا میں اپنے پرنسپلز، میرے گھر میں میرے اصول. میں نے کہا جی آج کے بعد میں والد کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا. حسن نثار از ناٹ مائی ریئل نیم. میرے والد کا نام تھا میاں نثار الحق، میرا نام ہے اسرار الحق. ان کی بدتمیزی یہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی بہت شرمناک اور ناروا سلوک رکھتے تھے. ان کی اپنی اولاد کے ساتھ رویے کے بارے میں ان کے اپنے بیٹے اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں. جب تک ادھر رہے ہیں ایک یتیم بھی اچھی زندگی گزارتا ہے. شادی کے بعد ایک بندہ اپنے 16-18 سال کے بچے کو یہ کہے
गंदी गालियों के साथ, गंदी गलीज गालियों के साथ कि कल तू कॉलेज जाना, तुम नहीं जाना। अपनी दूसरी बीवी के कपड़े धुलवाए, खाना बनवाए, घर की सफाइयाँ करवाए। अब तो यार तशद्दुद एक अलग चीज़ है। तशद्दुद एक अलग, एक आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, दूसरे आप तशद्दुद करते हैं, तीसरे आप इज्जत भी नहीं करते, बच्चों से प्यार भी नहीं करते, आप अखलाक से पेश बद अखलाक हैं, बद ज़ुबान हैं, आप बद अखलाक हैं, बद ज़ुबान हैं, बद किरदार आप शुरू से हैं। ये सारा कुछ हकीकत है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस बंदे को। बाप नाम की चीज तो इसमें कोई चीज़ ही नहीं है। ये वीडियो आप पूरी YouTube पे देख सकते हैं। हसन निसार की इखलाकियात की गिरावट का ये आलम था कि उन्होंने अपनी मरहुमा बीवी को भी नहीं बख्शा। उनकी अपनी कमज़ोरियाँ होंगी, वो ठीक हैं, होती वो शी वॉज परहैप्स शी वॉज एन एक्सेप्टेबल रीजनेबली गुड इफ नॉट वेरी गुड वाइफ, बट शी वॉज अ बैड मदर। उनमें डिसिप्लिन नहीं। मैंने ये वीडियो उन्होंने अपने बेटों की वीडियो के जवाब में जारी की। उन्होंने उन्होंने मेरे बारे में ना को उल्टी सीधी बातें करना शुरू की। तो मेरी सगी बहनों ने कहा तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा नहीं, उसका ज़र्फ है, मैंने खामोशी इख्तियार करनी है। जिसके साल 12-14 साल गुजारे हैं उसके बारे में मुझे भौंकते हुए शर्म आएगी। एक गैरतमंद मर्द कभी औरत को बुरा भला या गाली नहीं देता, और फिर मरहुमा बीवी को बुरा भला कहना गिरावट की अपनी मिसाल आप है। अब अगर बात हुई औरत को गाली देने की, तो ये भी मुलाहिजा फरमाइए कि जनाब के मुंह से एक औरत के बारे में कैसे फूल जड़ते हैं। क्या है जरा देखिए। सच्चा औरत है, 5.5 जोड़ी पता ही नहीं है। करो बात उसे। बेलीपुर के नाम नेहाद सुकरात एक खातून सहाफी को प्रोग्राम थोड़ा सा लेट होने पर गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। 10 वारी तो माई नू दस्या, 10 वारी तो माई नू दस्या। मगर यही शख्स अपने बेटे के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है? अपना कितने बजे लैन जाना हातिम साहब नू? और दूसरे की बेटी कुत्ती औरत में, कुत्ती औरत में। क्या इखलाक और तहजीब से आ रही ये शख्स अवाम को भाषण देने का हक रखता है? ठीक है, कुत्ती औरत है, की कर रही हूँ। इस वीडियो में जिस लड़की को ये गालियां दे रहे हैं, उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो शो के लिए थोड़ा सा लेट हो गई थी। हसन निसार साहब सिर्फ बदतमीज ही नहीं थे, बल्कि अक्सर औकात टीवी शोज में नशे में धुत भी पाए गए। यार ये जहालत का एक फलंदा है। बात सुने। जी मैं सुन रहा हूँ। हमारे खुलफाए राशिदीन को अमरीका सदियों बाद तक इसका वजूद नहीं था। यहूदियों ने कहा भाई बंद करो ना, अब ये बकवास जो है ये लोग सुन सुन के तंग आ गए। हसन निसार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब अभी तारिक अजीम साहब कह रहे थे और औरिया साहब भी कह रहे थे कि पैसे देके, ऐसे भी लोग मौजूद हैं इस माशरे में, पैसे देके वो कॉलम लिख देते हैं, वो टीवी पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ना टाइम ना जाया करें, ना अपना ना मेरा। जी इन दोनों की जरूरत है, बात करें। और यह मकबूल जान मेरा गीटू ग्रे है, इसका मैंने नाम रखा हुआ है गीटू ग्रे। अच्छा, इस गीटू ग्रे को पूछो ये। अच्छा अभी ये तारिक अजीम है। डॉक्टर साहब बात सुने। जी जी पूछे ये भी रहे, मोहम्मद अली दुरानी को कॉल करो जरा, इन्हें पूछो कोई इनमें से किसी की जरूरत है, पूछे आप इनसे। नहीं आपकी तो तारीफ आप नहीं हसन निसार साहब, आप गलत समझे। लेकिन आपको बिल्कुल पता है कि कुछ लोग इस पेशे में हैं जो कि सिर्फ इस चीज पे जीते हैं कि ठीक है उनको मिल जाए, 2-3 कॉलम मिल जाए, उनकी रोजी लगी रहे। आप जैसे लोगों को तो किसी का आपको खुश रखे, आपने मुझे एक्सोनरेट कर दिया, आपकी मेहरबानी। इल्जाम भी लगा देते तो मैं क्या कर देता। किसी न किसी सियासी पार्टी से इख्तलाफात सबके होते हैं, लेकिन लाइव टीवी पर बैठकर अपनी मुखालफ पार्टी वालों को गालियां देना ये एक मुहज़्ज़ब आदमी का काम नहीं है। और जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं अभी एक इज्तिमा के लिए, एक फर्द जो है एक इज्तिमा पे लानत भेज रहा है, इस मुल्क के अवाम पे लानत भेज रहा है। और हसन निसार साहब अपने फार्म हाउस में रहते हैं और फिर इस मुल्क के लोगों को वो गालियाँ बकते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियाँ पहनते हैं, जो वो
और चल चुप कर तू, और चल चुप कर तू बदमाश, तुम उल्लू के पट्टे कुत्ते, तुम हरामजादे, हसन निसार साहब एक मिनट प्लीज तुम हो कुत्ते, मुशाहिदुल्लाह साहब प्लीज हसन निसार साहब प्लीज हसन निसार साहब मतलब ये हसन निसार साहब इसको इस्तेमाल क्या करता है? तुमने क्या इस्तेमाल? तुम नशे में हो? हसन निसार साहब इसको नशे में हो या होश में हो? हसन निसार साहब प्लीज हसन निसार साहब इसको लाखों आवाम सुन रहे होंगे, इसको प्लीज लाखों आवाम सुन रहे होंगे। हसन निसार साहब मैं वो वापस तुम्हारे मुंह पे फेंकता हूँ, तुम पे जो तुम कहोगे। अब देखिए अपनी जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियां पहनते हैं, जो वो, पत्ते का लफ्ज और चल चुप कर तू, और चल चुप कर तू बदमाश। ये बताइए यार ये जहालत का एक पलंदा है। बात सुने जी मैं सुन रहा हमारे खुलफाए राशिदीन को अमरीका सदियों बाद तक इसका वजूद नहीं था। यहूदियों ने कहा और भाई बंद करो ना, अब ये बकवास जो है ये लोग सुन सुन के तंग आ गए हैं। उसने यहाँ उसको मारा, सलाम दिल्ली की तारीख हसन निसार साहब को इस वक्त आप न बुलाया करें। हेलो इनको इस वक्त आप बुलाते हैं, इनके मामला बहुत तरह से है। किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को जाहिलों का टोला कह रहे हैं, यानी ये अकल का सारा पलंदा है, बाकी सारे जाहिल है। कोई बकवास कर रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे ही है। किस मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। एक गली और मोहल्ले में जो इकट्ठे नहीं है, मुत्तहद नहीं है। आप उनकी ड्रीम सेलिंग कर रहे हैं, आप उनके ख्वाब बेचते हैं। राजा साहब आप समझते हैं मुस्लिम उम्मा का रोल आइडियल है? आप तो जो मुसलमानों के साथ होते हैं, कौन सी मुस्लिम उम्मा? उनके कत्ल के ऊपर, मुसलमानों की लाशों, तड़पती हुई लाशों के ऊपर डायलॉगबाजी बंद दानश्वरी कर रहे हैं। एक घटिया डायलॉग में खुदा का खौफ करो। अच्छा हसन साहब मुझे भगवानों को मारा गया और वो हमारे भाई थे। यही जो शाही सैयद सही कहा थे यार, ये क्या है? ये भाई मुस्लिम उम्मा सदियों से भाई नहीं। आपने आप तो उनके कातलों के साथ थे। पहले रूस मार रहा था, अफगानों का कातल और पठानों का कातल, आप उसके साथ थे। हम उनका साथ दे रहे थे। जो मजलूम थे, जो मर रहे थे, हम उनका साथ दे रहे थे। और उनका फिर बड़े आराम से ये बात कह देते हैं। बात यह है कि ये इस सारे मामले के अंदर जो कुछ ये वाकयात हो रहे हैं, इसमें अगर अमरीका निकल गए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हसन निसार साहब लेकिन तहजीब का हसन निसार साहब से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जैसा हमने आपको बताया, बदतमीज होने के साथ साथ ये मुनाफिक भी हैं। आप इस वीडियो में खुद चेक करें कि कैसे एक डिक्टेटर को ये गालियां देते हैं। ये थी भी आप ही ये अफगान वॉर के बाद जो ज़ियाउल हक जैसे मनहूस और लानती आदमी ने कवालत देने के लिए, उस लानती आदमी ने, उस मनहूस और लानती आदमी ने इस मुल्क को उसका विजन नहीं, और दूसरे डिक्टेटर को ये इज्जत से पुकारते हैं। बीच में ग्रोथ रेट मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में था अबाउट 7%। तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। यानी इनकी नजर के अंदर परवेज मुशर्रफ तो वलीउल्लाह है, वो कुतब है, वो गौस है, वो अब्दाल है, वो इस मुल्क का निजात दहिंदा है, जिसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। ये वही हसन निसार है जो आए रोज पाकिस्तानी कौम और मुसलमानों को मगरब से तहजीब सीखने के दर्स देते रहे हैं। उनकी अपनी तहजीब का आलम आपने खुद चेक किया। हसन निसार साहब हमेशा उलमा और इस्लामी शख्सियात के खिलाफ रहे हैं, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस एहतराम से ये उलमा से बात करते हैं। हीरोज बयान किए गए ना पिछले 500 सालों में, उनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिनका बनी नौ इंसान नाम भी जानती हो, या जिसने कुछ कॉन्क्रीट जिसकी को कंट्रीब्यूशन हो। यहाँ बत्ती जल रही है ना, 1 मिनट बोले ना बीच में, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। अल्लामा इकबाल को नहीं जानते आप? वो अल्लामा इकबाल दुनिया को नहीं जानते। क्यों नहीं? उसने एन मैरी शिमर में पीएचडी किया जर्मनी के अंदर, आपको पता ही नहीं किसी बात का। छोड़ें छोड़ें बात।
انہی نام نہاد تجزیہ نگار صاحب کا مینٹل لیول اور ان کا اپنا گول چیک کریں. عقل مند لوگ ایک طرح سوچتے ہیں اور بے وقوفوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا. عقل مند لوگ ایک طرح سوچتے ہیں اور بے وقوفوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا.